Hello and welcome everyone. Welcome to our today's numerical session of chapter 10 Work and Energy. Before starting this video, I would like to remind you that this particular chapter, the theory part, is explained by me in the one short video. So please do watch that video first. After that you can understand this numericals. If you remember the formula, then you can watch the whole video. So without wasting time, let's try to complete all the important questions of this chapter in again one shot. Okay, as you can see, we have made a list of formula as usual. Let's see the first formula, that is of work done. As you can see, I have written WF. The reason is because whenever we talk about a work, कि भाई work कौन कर रहा है, work is always done by force. Maybe some other external agencies will be there, but eventually force is doing the work. जैसे मैंने push किया, तो push is a force. फिर वो किसने किया है, doesn't matter. Always there is a force which will be used to displace an object, and that's why it is called as work done. So basically, how we define work done by a force into displacement. Also, you can write Fs. But when we say force can be of two types. If you remember, if you watched that video. If I am continuously pushing with the constant force, कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स है तो 10 न्यूटन का ही फोर्स जा रहा है, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो क्या कहूंगा उसे मैं, कांस्टेंट फोर्स. इस चैप्टर में अपन सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट फोर्स. दूसरा फोर्स कौन सा होता है, वेरिएबल, विच मींस पहले आपने धीरे धक्का दिया फिर जोर से धक्का दिया, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स is changing, so you can say that is a variable force. Okay, so work done is equals to force into displacement. The unit of force is, SI unit of force is Newton. Displacement is the shortest distance between initial and final point, so its unit will be meter. And work done, as you remember, the unit is joule. So whenever you solve any question, remember to put the unit at the end. Second, that is again the second law of, from the second law of motion, F is equals to ma. From the gravitation chapter, you remember, if you remember, we can also replace acceleration A with G, which means gravitational acceleration. If there is any motion in vertical direction, upward or downward, then you will use this formula, F is equals to mg. And also, the G can be positive or negative. That will depend on the direction. Velocity and acceleration, if both are in same direction, we will take G as positive, and if they are in opposite direction, G will be negative. इतना याद रखना है बस. Second, very important for this particular chapter, that is kinetic energy, EK. We have derived the formula. Okay, let's derive the formula first. As you know, work done is equals to force into displacement. Okay, and work done, the work is always converted into some energy. So let's take work done as it is first. Instead of A, I can write MA, and if you remember, V square minus U square is equals to 2AS. Put S as a subject, what you will get? V square minus U square upon 2A. So we can put V square minus U square by 2A instead of C. Putting the values, C, A will be cancelled out. So what I will get? Half M V square minus U square. Now, this particular work done will be converted into kinetic energy itself. That is called as kinetic energy only. When we talk about mass and square of velocity. Here, if the initial velocity is 0, I can take kinetic energy is equals to half mv square. Basically, that is derived from the formula of work done. See the next formula. Okay, what will be the energy? Kinetic energy is unit. Again, joule. That is, as it is energy. Mass, kg, velocity, meter per second. Next formula is of potential energy. Basically, gravitational potential energy. That is mgh. Okay, that also can be derived from the same formula of work done. See, work done is equals to force into displacement. Now, if you remember, potential energy was energy related to the shape, size or configuration, or you can say
the height, that depends on that. So in gravitational, first I will replace the work done will be converted into potential energy. You can replace F by, whenever there is a vertical motion, we can replace it with, if you remember, mg. Okay, put mg. Now, if I have taken this as a reference height, reference level, sorry. So if the object is here somewhere, so it must have some energy, but the displacement will be this particular height. So instead of S, if I will replace it with H, I will get the formula for potential energy, that is mgh. These are the two important formulas that we have derived in this chapter. Potential energy, again unit joule, and last one is P stands for power. Power stand which has a formula work done per unit time, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर रहा है. सीधी सी बात है कि अगर एक ही वर्क कम टाइम में किया जाए पावर ज्यादा होगा, और एक ही वर्क ज्यादा टाइम में कर रहे हो मतलब पावर क्या है, कम. So work done divided by time is power, which means power depends on time also. As you can see, if you will increase the time, power will be less. If you will decrease the time, power will be more. That's how it depends on power. Sometimes in numericals, in some questions, they may ask you to find energy and they will give you power and time. So, confused नहीं होना है. Work done की जगह energy पूछिए, because work done का यूनिट क्या है, जूल. Work done ही किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, kinetic energy, potential energy. Simply they will tell you to calculate energy. तो ये फॉर्मूला भी फॉर्मूला की तरह याद रखो, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम. ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? इफ यू रिमेंबर, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जेम्स वॉट, द यूनिट ऑफ पावर इज आल्सो वॉट, W. एनर्जी जूल, टाइम सेकंड. These are the formulas that will be enough for you to solve all the, you can say, conceptual questions of this chapter. But yes, the formulas related to, yes, acceleration. Tell me, if acceleration is constant, then three equations of motion are always available. Okay, so whenever in a question, if you find the acceleration is constant or uniform acceleration or something like that, directly or indirectly, then you will go with the three equations of motion that I haven't written here. But if you have seen all the previous three videos, you will be able to remember or memorize all these equations of motion. First is V is equals to U plus AT. That also you can use. S is equals to ut plus half at square. And last, V square minus U square is equals to 2as. That we have used in this chapter also for the derivation part. So these are the three equations of motion that you will use if acceleration is constant or something related to acceleration is constant is given. Okay, so let's start the question part without wasting time. Let's start the numerical part, but before that, there are some conceptual questions in this numerical, because in the last few chapters that we have discussed, there were less conceptual questions and more, you can say, mathematical questions. But in this chapter, you will face some difficulty in solving some of the exercise questions, because यहाँ पे सिर्फ पेन नहीं चलानी है, दिमाग भी चलाना है. So let's see how you will use your brain. See the first question, that if you are throwing an object or whatever it is at some angle, ऊपर नहीं फेंक रहे हो, कुछ एंगल पे फेंक रहे हो, तो इस तरह से वो प्रोजेक्टाइल बनाएगा जिसको आप आगे जाके मैथ्स में पैराबोला कहोगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पैराबोला. कौन सा शेप है? पैराबोला. ठीक है, ज्यादातर आप बॉल थ्रो करते हो तो वो पैराबोला शेप बनाता है. तो ये पूरा ट्रेजेक्टरी हो गया पैराबोला का, पाथ हो गया, किसी एंगल पे फेंका है, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड थीटा, फिजिकली एंगल. अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी वर्क डन पूछा जाए तो कभी कभी स्पेसिफाई भी कर देगी कि कौन सी फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा. तो यहाँ पे फिक्स है कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा. पता है आपको भी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आप कहोगे कि भाई फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी आप प्लेस ले सकते हो, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, नीचे. ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आगे ही जा रहा है ना.
इस पॉइंट के तुरंत बाद आगे जाएगा, तुरंत बाद आगे। तो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने क्या कहा था कि व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई भी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या लेंगे हम? वर्क डन पॉसिबल है। इस केस में क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, वर्क डन सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इज जीरो, विच मींस वर्क डन इज 0 जूल। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि भाई डायरेक्शंस, मोशन की डायरेक्शन कहाँ पे, ऑब्जेक्ट किस तरफ मोशन कर रहा है, और जो भी फोर्स लग रहा है, मल्टीपल फोर्सेस भी हो सकते हैं, तो दे विल स्पेसिफाई। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई सिमिलर क्वेश्चन है, वर्क डन फाइंड करना है आपको। कोई ऑब्जेक्ट है, टेबल पे रखा हुआ है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, टेबल के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा? अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन कौन सी है? नीचे वाली ना, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नीचे लगता है, नीचे डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर, एज यू कैन सी। परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? 0 जूल। ओके, दैट्स व्हाई these questions are called conceptual questions. See the third question, satellite. भाई ये अपना अर्थ है, planet. We know that our natural satellite or an artificial satellite are moving around the earth in a specific orbit. ये उसकी ऑर्बिट है, ऐसे घूम रहा है। अब जब घूम रहा है तब उस पर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, अपने आप तो घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो एक थोड़ा कंसेप्ट है इसके पीछे कि भाई the particular satellites revolve like this because of the gravitational force of, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है सेंटर की तरफ, तभी इस ग्रेविटेशनल फोर्स को we can call it as सेंट्रीपेटल फोर्स। एक टाइप का ये क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। जो भी फोर्सेस सेंटर पे लग रहे हैं कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स एज ऑफ नाउ। सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है सेंटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? सी द डायरेक्शन, सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, बट द मोशन इज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज दिस। इस पॉइंट के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो हर किसी पॉइंट पे भी आपको उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन कहाँ पे हो रहा है देखना है, तो टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे, सीधी लाइन बना दी। तो देखो कोई भी पॉइंट ले लो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे, परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल का हो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही घूम रहा है ऑब्जेक्ट या फिर सैटेलाइट। यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या है? एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, अगेन 0 जूल। Coming to the next question, that is, if in a question it is said that if force is 0, will displacement be possible? Think about it. चलो डायरेक्ट को फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, F is equals to ma। अगर फोर्स 0 होगा तो we can say that acceleration, mass into acceleration will be 0। अब ज्यादातर केस में अपन क्या कहते हैं कि मास 0 नहीं होता, तो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज 0। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो होता ही है ना कुछ, तो 0 हो गया। तो आप कहोगे कि भाई एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नो, सी वाई, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इफ एक्सेलरेशन इज 0, which means object is moving with, okay, v minus u by t is equals to a, ये 0 है और t तो 0 हो नहीं सकता, t into 0 0, v minus 0 क्या हो गया? 0, v is equals to u। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट
फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स टोटल फोर्स जीरो लग रहा है, विच मीन्स एक्सेलरेशन जीरो। मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग विथ c as the velocities are same, it is called as uniform motion। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चला जा रहा है, ना वेलोसिटी चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन। और याद करो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, विच मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है तो भी वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, एक सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप। सी कि भाई अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या फोर्स नॉन जीरो पॉसिबल है? कि भाई एक्सेलरेशन तो जीरो कर दिया आपने, चलो F इज इक्वल्स टू m, ए क्या है जीरो, तो आपको लगेगा फोर्स क्या हो गया जीरो, लगेगा यही चीज, बट नो, व्हेन वी राइट F इज इक्वल्स टू ma, ये F क्या है लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने, F इज नथिंग बट द नेट रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा हो ऐसा जरूरी नहीं, मल्टीपल फोर्स भी रख सकते हैं। अब मल्टीपल फोर्स है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल फोर्स क्या होगा जीरो। सी एग्जांपल लेते हैं अपन टू बेटर अंडरस्टैंड दिस। भाई ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन का, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा? नो, फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये 10 न्यूटन पॉजिटिव तो ये 10 न्यूटन क्या हो गया नेगेटिव, तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स विल बी जीरो, पर इंडिविजुअल फोर्सेस तो है ना, तो यस। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया जीरो। समझो और एक बार, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो विच मींस नेट फोर्स इज जीरो, इंडिविजुअल फोर्स तो होगा ना, इंडिविजुअल फोर्स है तो इंडिविजुअल फोर्स पॉसिबल है। देखो आप 10 न्यूटन 10 न्यूटन, इस पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है जीरो। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल फोर्स की बात हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स कैन बी जीरो बट इंडिविजुअल फोर्सेज यू कैन सी। अभी मैं खड़ा हूँ अर्थ पे तो मेरे पे भी फोर्स लग रहा है, कौन सा, एज आई एम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, कॉन्टेक्ट फोर्स यू कैन से, फ्रिक्शनल फोर्स यू कैन से, नॉर्मल फोर्स यू कैन से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो, मल्टीपल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन मी। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिल नहीं रहा हूँ तो फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, दैट्स व्हाई you are not seeing any motion because of that force. So these are all the conceptual questions that we have discussed. Now let's jump to the more mathematical part that I hope you like more. If you have read that question, then the mass is 20 kg, initial velocity is given as 5 meter per second and final velocity is 2 meter per second. We need to calculate work done. Now if I will use the formula of force into displacement, so I will need force. Okay, force is not given directly, so instead of force I can write mass into acceleration. Mass is given, acceleration is also not given. Calculate acceleration, I will need time. And force into displacement, my displacement is not given, time is not given. So if I will use that formula, there will be no profit I will get by using that. So think about another formula which relates work done, velocities and mass. Answer is the formula that relates all these is called as work done by a force equals to change in kinetic energy. कोई नई फॉर्मूला नहीं है, हमने जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला डेराइव की थी हाफ एम वी स्क्वायर, वो कहाँ से डेराइव की थी, वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन. ओके, राइट फॉर्मूला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो हाफ एम क्या लिखोगे यू स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक लिखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे वी आएगा बस. अब हाफ एम तो कॉमन है दोनों में, कॉमन निकाल दो. what you will get, चलो putting the values you will get work done. Mass is 20 kg,
इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो 5 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 2, 2 स्क्वायर, 2 10 5 square 25 minus 2 square 4, you will get 25 minus 4 21, so 210. Is answer complete? No, put the unit. Given mass is 40 kg और क्या दिया है, हाइट 5 मीटर और पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर पे है तब, और काइनेटिक एनर्जी आधे रास्ते पे है तब। कोई क्वेश्चन समझो आप, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 40 kg, किस हाइट पे है अभी 5 मीटर, सीधी सी बात है हाइट में चेंज आया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे, फिर यहाँ से तो हाइट डिक्रीज हो रही है ना, मैक्सिमम हाइट कितनी दी गई है 5 मीटर, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी मैक्सिमम। चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी विल बी EP इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है mgh, मास कितना है 40, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, यहाँ पे डाउट आ सकता है कि भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ज्यादातर केस में हमने 9.8 लिया था लास्ट चैप्टर में भी, सो वी विल टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाइट कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर पे ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ना, जो भी आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी ना दैट विल बी मैक्सिमम, इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की 5 4 20, 9.8, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, यू विल गेट 20 into 98, 0 0, 8 2 16, 9 2 18, 19, you will get 1960 joule. That will be the potential energy or maximum potential energy of that object. दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हाफ mv², बट हाफ है, चलो जो कांस्टेंट है, मास दिया है, वेलोसिटी कहां से लाओगे, हाउ यू विल कैलकुलेट वेलोसिटी। अब सीधी सी बात है, अगर आपको पता हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, क्या रहता है कांस्टेंट। अब ये मैक्सिमम हाइट पे था जो आपने फाइंड किया, मैक्सिमम हाइट की ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब आप जस्ट उसे रिलीज करने वाले थे, ड्रॉप करने वाले थे, तब पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। एज आई सेड कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। ये भी एक चीज है दैट यू विल यूज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब देखो इस पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड किया अपन ने 1960, ठीक है, तब उस मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0, तो टोटल एनर्जी या फिर कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी क्या है 1960, तो हमेशा ये जो टोटल है ना वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन पे क्या होगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, आधे रास्ते पे पहुंचेगी तब पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी, एज इट डिपेंड्स ऑन हाइट। ठीक है ना, हाइट आधी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई, तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी 1960/2। अब टोटल मैंने ऑलरेडी कह दिया 1960 ही है मैक्सिमम कांस्टेंट। करो कैलकुलेट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1960 माइनस 1960/2, यू विल गेट 1960/2 ओनली, है ना। 1 - 1/2 1/2 ही होता है, 2 9 18, 2 8 16, यू विल गेट 980 जूल। इतना भी नहीं सोचना था आपको, पता है आपको दो ही एनर्जी है अभी तो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, आधे पे पहुंचा तो आधी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, तो आधी एनर्जी कहाँ गई, आधी पोटेंशियल एनर्जी, तो आधी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो जितनी सब हाफ वे डाउन पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो जितनी पोटेंशियल होगी उतनी काइनेटिक। ठीक है, तो
इफ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल 1960/2 तो भी 980 आता, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती 980 जूल। तो इतना कोई मैथमेटिक्स नहीं था, ये लॉजिकली भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन एनर्जी इज 250 यूनिट्स एंड टाइम इज 30 डेज। चलो अपने घर पे जो बिल आता है एनर्जी का यूनिट लिखा होता है उस पे बेसिकली यू हैव टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू जूल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नंबर आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है देन आल्सो यू कैन डिराइव इट, बट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन द लास्ट वन शॉट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो आई विल जस्ट टेल यू द वैल्यू। अब 250 यूनिट्स मतलब जिसको आप कहते हो 250 किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर और जूल के बीच में रिलेशन पता है क्या है, 1 किलोवाट आवर बेसिकली दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, ये जूल क्या है, ऐसा यूनिट है एनर्जी का जूल, कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर या फिर यूनिट्स जो भी कहते हैं, इन जनरल दैट इज कॉल्ड एज यूनिट इटसेल्फ। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶। अब ये चीज याद नहीं रखनी है, फिर भी याद नहीं है तो भी आप देखो किलो की जगह 1000 रखोगे, 1 आवर की जगह उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ओके, एज इट इज मेंशन कि भाई 30 दिन के लिए आता है, कितना एनर्जी आपने यूज किया है उसका बिल 30 दिन में जो आ रहा है महीने का, दैट इज कॉल्ड एज 250 यूनिट्स। अब इस एनर्जी जो 250 किलोवाट आवर है उसको कन्वर्ट कर दो जूल में। कैसे करोगे, चलो 1 किलोवाट आवर is equals to 3.6 into 10⁶ जूल। तो 250 किलोवाट आवर में कितना होगा जूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सीधा, यहाँ पे x ले लो, चलो मैथ्स में करते हो ना आप ऐसे, x को सब्जेक्ट बनाओ, व्हाट यू विल गेट 250 into 3.6 into 10⁶ जूल। जूल में ही फाइंड कर रहे हैं ना अपन, x की वैल्यू जूल में आएगी। तो बेसिकली द x ने एनर्जी ले लेते हैं अपन, एनर्जी इन जूल विल बी, इसको आई कैन राइट 25 into 36। ओके, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करती है, एनर्जी विल बी 25 into 36 सोल्व करो, व्हाट यू विल गेट 6 5 30, 12 13 14 15 15 7, you will get 900 into 10⁶ जूल। साइंटिफिक नोटेशन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ओके, व्हाट वी विल डू, 9 एक ही डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले, तो यहाँ पे पॉइंट है, इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, आई विल गेट 9 इंटू, अब देखो डिवाइड बाय मैंने इसको 100 किया, जैसे डिवाइड बाय 100 करूंगा 9 मिल जाएगा, डिवाइड करूँ तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा 100 से, 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻², व्हाट आई विल गेट, बेस सेम पावर एडेड 6 + 2 7 8, आई विल गेट 10⁸8 जूल। 9 into 10⁸8 joule, that will be the energy in joules. Here also we have to calculate the energy, but power is given, okay, and time is also given। चलो पावर की फॉर्मूला क्या होती है एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम। इफ यू रिमेंबर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ पावर, एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी फाइंड करनी है, सब्जेक्ट बना दो पावर इनटू टाइम। अब चलो वैल्यू पुट करने से पहले आपको ये देखना है कि जितनी भी वैल्यूज दी है उसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट है कि पावर का यूनिट होता है वॉट, वॉट में, चलो टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, क्या दिया है आवर, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में। चलो 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes, 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds। तो ये हो गया सेकेंड में कन्वर्ट। अब इसको कैलकुलेट ना करो तो भी चलेगा, डायरेक्ट इधर ही वैल्यू रखो। क्वेश्चन में जो फाइंड करने को कहा है वही सही होना चाहिए, बाकी आप
रेशियो या फिर मल्टीप्लिकेशन एज इट इज रखो ताकि इजी रहे कैलकुलेशन में। पावर है 1500, टाइम है, सी द टाइम इज 10 into 60 into 60। On solving you will get the answer। चलो सॉल्व करने से पहले बहुत सारे जीरोस है ना, सारे जीरोस को एक साथ लिख देता हूँ। 10 रेस टू जितने भी जीरोस है 1 2 3 4 5 जीरोस है टोटल। बचा क्या 15 इंटू ये तो चला गया 6 इंटू 6 6 या 36। Multiplying 36 with 15, what you will get? 6 5 are 30, 18, 6 1 are 6, 3 1 are 3, 14, 540. Energy will be 540 into 10 raised to 5। यहाँ पे भी देखो एनर्जी है तो जूल में आंसर आएगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले। अब जो आंसर की होगी या फिर जो भी आंसर आपने देखा होगा उसमें आंसर क्या होगा सिंप्लीफाइड वर्जन में। स्टैंडर्ड वर्जन में क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन पहला नॉन जीरो डिजिट मतलब जो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है 5, डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए यहाँ पे, अभी कहाँ पे है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ले आना है, ठीक है। तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे आप 5.4 हो जाएगा, लेकिन 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, what you will get 5.4, 10 raised to 5 plus 10 raised to 2 क्या मिलेगा 10 raised to 7। आंसर इज 5.4 into 10 raised to 7 जूल। यस करेक्ट। तो ये मिल गई एनर्जी। अब बाकी जो जितने बचे हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है कि भाई आपको पावर और टाइम दे दिया गया, और एक क्वेश्चन है जिसमें पावर और टाइम दिया है, एनर्जी फाइंड करनी है। यूनिट्स चेंज कर देंगे, फॉर्मूला वही रहेगी, प्रोसेस वही रहेगी। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज आपको दे दिया गया, मतलब वेलोसिटी का चेंज और ये सब मास दे दिया गया और यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो एक क्वेश्चन किया था आपने, वही सेम क्वेश्चन करना है। ओके, बाकी जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं हो रहे, या फिर अगर कोई भी एक जीरो है तो वर्क डन क्या होगा जीरो, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जीरो है तो भी जीरो होगा वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी जीरो होगा वर्क डन। क्लियर? और इफ यू रिमेंबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। जैसे सैटेलाइट्स का आपने क्वेश्चन सोल्व किया था, फिर टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, और डिस्प्लेसमेंट या फिर मोशन कहाँ पे हो रहा है, बस यही देखना है आपको। ठीक है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो जीरो। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10, basically the next coming chapter of sound will be the last chapter we will solve for the numericals. Keep watching. Physics works.